ਹੈ ਜੀ ਹਾਕੀ 'ਚ, ਇਹ ਫੀਲਡ ਹਾਕੀ 'ਚ ਇੰਨੇ ਚੇਂਜ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਟ੍ਰੋਟਰਫ ਆ ਗਈ। ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਸੀ ਅਡੈਪਟ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਛੇਤੀ ਕੋਚਿਸ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਨਵੀਂ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਅਡੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਨਾ ਹੀ ਫਿਰ ਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਸੌਖਾ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ 10-15 ਸਾਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਾਊਨ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ। ਲੰਬਾ ਵਕਫਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ 68 ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 1972 ਚ ਜਿੱਤਿਆ ਆਪਾਂ, ਤੇ 72 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਵਕਫਾ, ਫਿਰ ਟੋਕੀਓ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਲਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਜਿੱਤਿਆ। ਤੇ ਟੌਸ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਡੈਪਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਯੂਰੋਪੀਅਨਸ, ਹੁਣ ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੇ ਹਾਲੈਂਡ ਦੋ ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ, ਬਟ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ ਚੁੱਕੇ ਜੀ। SGPC ਤੋਂ ਕੋਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ, ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ 8 ਨੰਬਰ ਜਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਨੰਬਰ ਜਰਸੀ 'ਚ ਖੇਡ ਰਹੇ। 8 ਨੰਬਰ ਜਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, 9 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, 11 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, 12 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, 13 ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ 14 'ਚ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਤੇ 16 'ਚ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੇ 19 'ਚ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਤੇ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੇ 21 ਨੰਬਰ ਜਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ SGPC ਸ਼ਰਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਾਕੀ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਜੀ SGPC। 14 ਸੁਖਵੀਰ ਨੰਬਰ 15, ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰ 16, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰ 17, ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰ 18, ਗੁਰਿਕਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰ 19, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰ 20, ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ 21, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ 22, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਟੀਮ ਕੋਚ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਟੀਮ ਮੈਨੇਜਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਐਮਪਾਇਰਸ ਫॉर द ਡੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਂਡ ਇਨ ਹੈਂਡ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਆ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਆ, AI ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅੰਪਾਇਰ ਵੀ ਵਾਰਮ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਦੀ ਵੀ, ਕਿ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਲਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਸਰਨੇਮ ਤੋਂ ਖੇਡੇ ਆ, ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਲਾਰ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਲਾਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਲਾਰ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਲਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਲਾਰ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਲਾਰ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਲਾਰ, ਅਜੀਤਪਾਲ ਕੁਲਾਰ, ਗਾਉਂ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਥਲੀਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਗੋਲਡ, 1 ਸਿਲਵਰ ਤੇ 6 ਕਾਂਸ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਕੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਭਰਾ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕੀਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਕੀਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਨਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੁਲਾਰ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਦੇ ਖੇਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿੰਦੀ ਕੁਲਾਰ ਖੇਡੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਜ਼ਬਾ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਰਿਵਾਈਵਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਐਫਰਟ ਕਰੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਸਟ੍ਰੋਟਰਫ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਰਿਵਾਈਵਲ ਕਰਨ। ਇੰਨੀ ਲੈਗੇਸੀ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਲੇਅਰਸ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਖੇਡਣ ਤੇ
ਰਾਉਂਡ ਗਲਾਸ ਹਾਕੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਚ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨ ਤੇ 1 ਨੰਬਰ ਜਰਸੀ 'ਚ 1 ਨੰਬਰ ਜਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਵ ਕੁਮਾਰ ਗੋਲਕੀਪਰ ਨੇ। ਟੀਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੋਲਕੀਪਰ ਦਾ ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 2 ਨੰਬਰ ਜਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, 3 ਨੰਬਰ ਜਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, 4 ਨੰਬਰ 'ਚ ਜਪਨੀਤ ਸਿੰਘ, 6 ਨੰਬਰ 'ਚ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, 7 ਨੰਬਰ 'ਚ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸਿੰਘ, 9 ਨੰਬਰ 'ਚ ਅਨੁਰਾਗ, 10 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, 11 ਨੰਬਰ 'ਚ ਸਨੀ, 12 ਨੰਬਰ 'ਚ ਓਮ ਰਜਨੀਸ਼ ਸੈਣੀ ਤੇ 13 ਨੰਬਰ 'ਚ ਹਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਕਰਸ਼, 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੈਕੰਡ ਗੋਲਕੀਪਰ ਹੈ, ਤੇ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, 21 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਉਂਡ ਗਲਾਸ ਹਾਕੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਲਾਲ ਜਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨੀਲੀ ਜਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ SGPC ਦੀ ਟੀਮ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਟੀਮ। 10 ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਲੈਂਟੀ ਕਾਰਨਰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਫਾਉਲ ਕਰਵਾ ਕੇ SGPC ਦੇ ਪਲੇਅਰਸ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਰਾਉਂਡ ਗਲਾਸ ਦੀ ਇਹ ਟੀਮ। रिप्ले दिखाया जा रहा है जी। बॉल में रोका गया, इंजेक्शन लिया गया, लेकिन गोल पोस्ट तो बाहर। एक बार फिर प्लेंटी कॉर्नर, एक बार फिर कोशिश। लेकिन मौके का फायदा नहीं उठा पाए। रिप्ले चलता है इस प्लेंटी कॉर्नर का। SGPC के प्लेयरों के कोल बॉल साइड लाइन तो बाहर गई। SGPC को पोजीशन अपने साथी खिडारी ने दिता। बॉल डी दे विच घुसन की कोशिश, पर चौकन्ने ने राउंड ग्लास हॉकी अकैडमी के प्लेयर जदोजहद करनी पै रही है SGPC के प्लेयरों नूं इस डी दे विच घुसन लई। खतरा मंडरा रहा है फिलहाल राउंड ग्लास की अकैडमी की टीम के उत्ते, लेकिन पोजीशन आया राउंड ग्लास की टीम के कोल। उत्कर्ष, जर्मन सिंह ने अपने खिडारी को पास दिता। डी दे कोल खतरा मंडा रहा है। बड़ा ही डिफेंस ने उस बॉल नूं छिन्निया उन्हां कोलों। बहुत ही उम्दा मुकाबला चलता होया अज दा यह आखिरी ते चौथा मुकाबला है। SGPC दे कोल पोजीशन 1-1 पास चलते हुए। एक लंबा स्कूप देने की कोशिश, खिडारी चोटिल होया लगता। दोनों ही खिडारियों ने इसनू एक मैच का पार्ट समझदे होया आपस के विच हथ मिलाए। एक खूबसूरती है खेडा की। अंपायर आए ने चैक करन के किते कोई सट ज़्यादा तो नहीं लगी। तो उस तो बाद मैच शुरू करन दे लई विसल दी
ਯੈਲੋ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਉਂਡ ਗਲਾਸ ਦੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਟ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਗੇਮ ਖੇਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਟ ਪੇਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਸ ਮੈਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪੇਟ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਇੱਕ 0 ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਉਂਡ ਗਲਾਸ ਦੀ ਟੀਮ ਲੀਡ ਕਰਦੀ ਹੋਈ। ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਚਿੱਤਰ ਰੁਕਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪਲ ਮਿਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਟੈਕ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਟੀਮ। ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਕੂਪ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੱਲੋਂ। ਬਾਲ ਗਈ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਇਆ ਰਾਉਂਡ ਗਲਾਸ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਬੈਕ ਪਾਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਮਿੱਠਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਥਲੀਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਓਲੰਪੀਅਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਓਲੰਪੀਅਨ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੁਲਵੰਤ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਨਾਮ ਨੇਮ ਪਵਾਰ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਨ ਕੁਮਾਰ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਚ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਰਾਉਂਡ ਗਲਾਸ ਕੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਰਾਉਂਡ ਗਲਾਸ ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਚ ਨਵੀਨ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਕ ਪਾਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਉਂਡ ਗਲਾਸ ਦੀ ਟੀਮ। ਰਾਉਂਡ ਗਲਾਸ ਦੀ ਟੀਮ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਦਿੱਤਾ। ਹਜੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਬਣਿਆ ਹੈ ਰਾਉਂਡ ਗਲਾਸ ਦਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਅਦਾ ਤੇਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਲੰਘੇ, ਤੈਨੂੰ ਮਸਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਚੀਰ ਕੇ ਲੰਘਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 11 ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨੀ ਨੇ ਝਕਾਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੁਸਤੈਦ ਸੀ ਉੱਥੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਲ 3 ਨੰਬਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਰਾਉਂਡ ਗਲਾਸ ਦੇ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਕੋਲ। ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 15 ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਕੋਲ। ਬਾਲ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਈ। ਰਾਉਂਡ ਗਲਾਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ। ਬੈਕ ਪਾਸ ਸੀ 26 ਨੰਬਰ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਸ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਬਾਲ ਗਈ ਬਾਹਰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਲੋ ਮੈਚ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਗੋਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਤਪਰ ਰਵੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਗੋਲ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਅਟੈਕ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਰਾਉਂਡ ਗਲਾਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ। डिफेंस ने रक्षा जो कर रही है टीम, उन्होंने जाया किया उस प्रयास ਨੂੰ। एक बार फिर बॉल राउंड ग्लास 13 नंबर खिडारी को हरमनप्रीत सिंह, फिर एक लंबा स्कूप डी ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਉਂਡ ਗਲਾਸ ਦੇ ਹਾਕੀ ਪਲੇਅਰ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ। आउट ऑफ टी, फिर एक बार कोशिश लेकिन खतरा टलिया। बॉल आई एसजीपीसी दी टीम दे कोल। एसजीपीसी अमृतसर दी टीम दा मैच चल रहा है राउंड ग्लास हॉकी अकैडमी दे नाल। बहुत वधिया गल है कि जिथे बहुत वधिया हॉकी क्लब हॉकी ਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਝਕਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਲੇਅਰ 10 ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਪਲੈਂਟੀ ਕਾਰਨਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਰਾਉਂਡ ਗਲਾਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਗੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼। ਗੋਲਕੀਪਰ ਮੁਸਤੈਦ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਪਲੈਂਟੀ ਕਾਰਨਰ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਰਾਉਂਡ ਗਲਾਸ ਦੀ ਟੀਮ। ਇਹ ਮੈਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ੈਲਮ ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਉਂਡ ਗਲਾਸ YouTube ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਾਉਂਡ ਗਲਾਸ ਦਾ ਪਲੇਅਰ। ਬॉल ਰੋਕੀ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਉਸ ਬॉल ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਰ ਹਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ, ਖਤਰਾ ਹਜੇ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਸਨੇ ਬॉल ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬॉल ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਖਤਰਾ ਟਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬॉल ਆਈ ਹੈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ 4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ ਫਸਟ ਕੁਆਟਰ ਦਾ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਉਂਡ ਗਲਾਸ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਨੂੰ ਗੋਲ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਉਂਡ ਗਲਾਸ ਦੀ ਟੀਮ बढ़त ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੀ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। गलत पास, रक्षा पंक्ति पूरी मुस्तैद। एसजीपीसी वालों गोल उतारन की परजोर कोशिश। ਝਕਾਨੀਆਂ ਤੇ ਝਕਾਨੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ
ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਉਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਲੈਂਟੀ ਕਾਰਨਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗੋਲ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੈਂਟੀ ਕਾਰਨਰ ਅਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਲੈਂਟੀ ਕਾਰਨਰ ਨੂੰ ਉਹ ਗੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਪਾਉਂਦੇ। ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਾਉਂਡ ਗਲਾਸ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਗੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਗਲਾਸ ਦੀ ਟੀਮ ਗੋਲ ਰੋਕਣ ਲਈ। ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਖਿਡਾਰੀ। ਬਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਲੇਕਿਨ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ। ਪਲੈਂਟੀ ਗੋਲ। ਸਮਾਂ ਕੁਛ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਫਿਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਰਾਉਂਡ ਗਲਾਸ ਹਾਕੀ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜਤ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਾਉਂਡ ਗਲਾਸ ਦੇ ਹਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਜਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬੜਤ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਰਾਉਂਡ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਟੀਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰੈਫਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਇਹ ਵੀ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਫਾਉਲ ਕਰਵਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੈਂਟੀ ਕਾਰਨਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਗੋਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਰਾਉਂਡ ਗਲਾਸ ਹਾਕੀ ਟੀਮ। ਇਹ ਖਤਰਾ ਟਲਿਆ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਕੂਪ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਪਰ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਕੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰੋਗੇ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰੋਗੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਾਉਂਡ ਗਲਾਸ ਵੱਲੋਂ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੋਲ, ਗਰਾਊਂਡ ਗੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗਰਾਊਂਡ ਗੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਰਾਉਂਡ ਗਲਾਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਹੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ 28 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੁਣੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਹੈ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 100 ਮੀਟਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਦਿਆਂ ਹੋਇਆ 2-0 ਦੀ ਪੜਤ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਉਂਡ ਗਲਾਸ ਦੀ ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਜੂਝਦੀ ਹੋਈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਟੀਮ 3 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਕਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਖਿਡਾਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਚਕਾਨੀਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਮੈਨ ਟੂ ਮੈਨ ਪਾਸ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੂਸਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਤੁਰਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੜਾਓਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਬਚਾਓਗੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ એનર્ਜੀ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੀਪਲੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਫਾਉਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੈਫਰੀ ਦਾ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ।
ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਬਾ ਕੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਲਹੂ ਚੋਂ ਲਹਿਰ ਜਦੋਂ ਉੱਡਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਖਰਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਾਉਂਡ ਗਲਾਸ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲ ਤੇ ਗੋਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਹੁਤ dominate। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਡੋਮੀਨੇਟ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਤਾ ਹੈ ਰਾਉਂਡ ਗਲਾਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ। SGPC ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਧੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੀਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਲੈਂਟੀ ਕਾਰਨਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਮਨਦੀਪ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਮੰਗ ਗੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਗੋਲ 3-0 ਦੇ ਨਾਲ SGPC ਦੀ ਟੀਮ ਪਿਛੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਸ਼ਮੀਮ ਆਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਹਾਕੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਮੀਮ ਆਲਮ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਲਾ ਜੋ ਵੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਹਾਕੀ ਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਹਾਕੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਖੇਡਾਂ ਬਾਰੇ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हैप्पी जी और वरिंदर जी, बहुत अच्छा, दोनों धीरे धीरे बढ़ रही है हॉकी काफिला और इनकी गति भी हैप्पी जी का और वरिंदर जी का धीरे धीरे प्रवाह चल रहा है। तो हम उम्मीद करेंगे कि जैसे खेल आगे बढ़ेगा इनके कमेंट्री के अंदर और धार आएगी। बहुत शुक्रिया यहाँ पर हैप्पी जी और वरिंदर जी। चलिए चलते हैं दूसरे क्वार्टर में। यहाँ पर राउंड ग्लास हॉकी एकेडमी, जो मैं बता दूं ये टीम है, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की टीम है। बहुत खुशी की बात है जिसने इतनी बड़े टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया इस यहाँ पर स्वर्गीय बलबीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम में। तो यहाँ पर राउंड ग्लास की टीम 0 के मुकाबले 3 गोल से आगे चल रही है और ये बहुत ही बेहतरीन अच्छी खबर राउंड ग्लास के लिए। तो अब यहाँ पर मुकाबला इस वक्त सोचनीय है, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लिए सोचनीय विषय है, क्योंकि मुकाबले में वापसी के लिए यहाँ इनको 3 गोलों की सख्त जरूरत है। तो चलते हैं खेल के मैदान में। मैं बता दूं आपको जानकारी के लिए, लाल रंग की जर्सी में है राउंड ग्लास की टीम, जो मेजबान टीम है, जिन्होंने इस बड़े टूर्नामेंट को आयोजित किया है। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ये टीम है। और दूसरी तरफ से काली रंग की जर्सी में और मिश्रण है, इनका कुछ हल्का गुलाबी रंग भी नजर आ रहा है। ये है टीम शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की टीम। तो यहाँ इस वक्त 3 गोलों की बढ़त बरकरार है इनके पास, राउंड ग्लास के पास। तो क्या स्थिति बनती है इस दूसरे क्वार्टर में, यहाँ पर इस देखने वाली बात होगी कितनी वापसी कर पाई यहाँ पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की टीम। तो इस बात यहाँ पर बाएं फ्लैंक में लेफ्ट विंगर के लिए पास, यहाँ पर राउंड ग्लास के खिलाड़ी बॉल लेकर आगे बढ़ते हुए स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर बहुत तेज हमला पनपता हुआ, लेकिन उतना ही तेज कोशिश यहाँ पर बॉल को रिवर्स किया, बॉल को बाहर किया अपने खतरे के क्षेत्र से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के खिलाड़ी ने। तो स्थिति यहाँ पर अभी 0 के मुकाबले 3 गोलों के आगे। एक बार फिर स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर बॉल को भेज दिया यहाँ पर गुरविंदर सिंह के लिए। यहाँ पर गुरविंदर सिंह बॉल लेकर निकालने की कोशिश, खेल के अंपायर कर्णदीप सिंह यहाँ पर समझा रहे हैं। तो बहुत अच्छा पास बढ़ा दिया गया था गुरविंदर सिंह के लिए। गुरविंदर सिंह देखिए रिप्ले में, ये ऊंची उड़ती हुई गेंद, हवा में उड़ती हुई गेंद, एरियल पास, बॉल को बढ़ाने की कोशिश यहाँ पर इंद्रजीत सिंह के लिए बढ़ाया था और इंद्रजीत सिंह ने बॉल को बढ़ा दिया था। बहुत खूबसूरत पास गुरविंदर सिंह के लिए और ये गुरविंदर सिंह ने बॉल को बढ़ाया, वहां अच्छा मौका था और यहाँ पर गेंद गई बाहर। तो स्थिति यहाँ पर पेनाल्टी कॉर्नर यहाँ पर दे दिया है राउंड ग्लास को खेल के निर्णायक कर्णदीप सिंह ने। एक और मौका यहाँ पर राउंड ग्लास के लिए,
इंजेक्शन, ड्रैग और गेंद गई गोल पोस्ट के अंदर। ये यहाँ पर चौथा गोल होता हुआ, गोल भी यहाँ पर पेनाल्टी कॉर्नर का गोल में परिवर्तन। वेरी ब्यूटीफुल कन्वर्सन ऑफ पेनाल्टी कॉर्नर इनटू गोल। तो इस तरह से यहाँ पर रिप्ले में देखिए किस तरह से गोल हुआ, आप धीमी गति में देखिए। ये इंजेक्शन रोका गया और बहुत बेहतरीन सटीक निशाना साधा, बिल्कुल बंदूक की गोली की तरह गेंद आई स्टिक में। और यहाँ पर देखिए इशारा करणदीप सिंह का गोल का, चौथा गोल होता हुआ। इस वक्त मुसीबतें बढ़ती हुई शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के लिए। एसजीपीसी को मुकाबले पे आने के लिए सोचना पड़ेगा, अपने खेल की परिणति को बदलना पड़ेगा, खेल के फॉर्मेट को बदलना पड़ेगा, तभी कुछ बात बन सकती है। क्योंकि बहुत ही जारहाना खेल, ऑफेंसिव खेल खेल रही है यहाँ पर राउंड ग्लास की टीम। अपने आक्रमण के सारे पत्ते को खोल दिया है यहाँ पर, और बहुत ही बैकफुट पे इस वक्त जाती हुई नजर आ रही है यहाँ पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की टीम। लेकिन अभी 2 क्वार्टर का खेल बाकी है और 12 मिनट का खेल बाकी है। हॉकी में ये समय बहुत है अगर वो टीम वापसी करने के लिए चाहेगी, एसजीपीसी की टीम। क्योंकि यहाँ पर हॉकी का जहाँ तक सवाल है, हम मिनट नहीं बल्कि सेकंड की बात करते हैं, और मिनट नहीं बल्कि सेकंड में परिणाम बदल जाते हैं, और गोल का समीकरण, गणित जो है पूरा उल्टा पुल्टा हो जाता है। पेनाल्टी कॉर्नर का इशारा यहाँ पर गुरप्रीत सिंह का इशारा। ये गुरप्रीत सिंह आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर, ये बहुत जालंधर से आते हैं, ये बहुत ही कड़क अंपायर हैं। मैंने इनका अंपायरिंग देखा है, रिप्ले में देखिए आप किस तरह से यहाँ पर बॉल को बढ़ा दिया गया था साथी खिलाड़ी के लिए। यहाँ पर सुखदेव सिंह ने बढ़ाया था साथी खिलाड़ी के लिए, लंबा हिट, यहाँ तेज हिट, और स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर वहां गलती कर बैठे राउंड ग्लास की टीम। और यहाँ पर गुरप्रीत सिंह का इशारा, ये देखिए गुरप्रीत सिंह स्क्रीन के ऊपर देखिए, ये बहुत ही कड़क अंपायर हैं, डिसीजन बहुत ही तगड़ा देते हैं। ये इनका कोई भी डिसीजन देने में हिचकिचाहट नहीं होती है। क्योंकि मैंने, और फिर यहाँ पेनल्टी कॉर्नर का इशारा गुरप्रीत सिंह का। मैंने इनका संचालन देखा है, जो उड़ीसा के राउरकेला में खेल हो रहा था 2 साल पहले, सब जूनियर पुरुष का नेशनल सब जूनियर लड़कों का मुकाबला हो रहा था। उसमें इन्होंने एक ही मुकाबले में 2 पेनल्टी स्टॉक दे दिया था। तो जाने जाते हैं ये अपने कठिन डिसीजन के लिए। फिलहाल पेनल्टी कॉर्नर मिलता हुआ यहाँ पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को। क्या कर पाती है ये टीम, एसजीपीसी की टीम। इंजेक्शन, बॉल को रोका गया, और यहाँ ड्रैग लेने में देरी, इतनी देर अगर आप कीजिएगा तो आप जितनी देर कीजिएगा डिसीजन में, खेल उतने ही दूर आपसे निकलता जाएगा। क्रिकेट मिलता हुआ यहाँ पर अपने क्षेत्र से राउंड ग्लास 0 के मुकाबले 4 गोल से आगे। बहुत ही तेज हॉकी चल रहा है यहाँ पर। सीधा पास, समांतर पास अपने साथी खिलाड़ी के लिए, राइट डाइंग फ्लैंग में बॉल को बढ़ा दिया है राउंड ग्लास के खिलाड़ी ने। लंबा हिट, थ्रू पास राइट फ्लैंग में, राइट विंगर के लिए बहुत तेज हिट बढ़ाई गई थी गुसविंदर सिंह के लिए। गुसविंदर सिंह बॉल को ले नहीं पाए, स्टिक पर गेंद यहाँ पर गई बाहर। स्कूप, ऊंची उड़ती हुई गेंद, काफी ऊंचाई से गेंद यहाँ पर इस वक्त संभाल लिया है रेखा के पास। राउंड ग्लास के खिलाड़ी ने बाएं फ्लैंग में बॉल को बढ़ा दिया है, बहुत तेज गति से आक्रमण करने की कोशिश। बाएं फ्लैंग से यहाँ पर बिल्डअप हो रहा था, अटैक बिल्डअप हो रहा था, लेकिन बहुत अच्छा चतुराई के साथ बॉल को निकाल दिया। गेंद एक बार फिर यहाँ पर है राउंड ग्लास के खिलाड़ी के पास बॉल। स्कूप यहाँ पर, लेकिन गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के खिलाड़ी के द्वारा बहुत अच्छा से वहां पर इंटरसेप्ट। स्थिति 0-4, एक लंबे गोल के अंतर से इस वक्त आगे है यहाँ पर। गेंद इसमें चली आई है वरिंदर सिंह के लिए, वरिंदर सिंह ने बॉल को बढ़ा दिया दाएं फ्लैंग में, एक लंबा पास, बहुत मिलता पास। तो यहाँ पर बहुत तेज हीटिंग यहाँ पर, और इस मौके को, यहाँ की नजाकत को समझना पड़ेगा। यहाँ पर इस टीम को बहुत ही तेज आक्रमण कर रही है टीम। यहाँ राउंड ग्लास की टीम बहुत तेज आक्रमण करती हुई। स्थिति 0-4, को बाहर मार दिया यहाँ पर। एक बार फिर
बॉल को बाहर निकालने की कोशिश, तेज कोशिश कर रही है यहाँ पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की टीम, लेकिन दाएं फ्लैंक से वहां पर स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर बॉल को लेकर पहुंचते हुए जॉनप्रीत सिंह जो बहुत ही तेज तर्रार हॉकी खेलते हैं, लेकिन बहुत ही तेज तरीके से वहां पर चतुराई के साथ बॉल को प्रबंधक कमेटी ने बॉल को बाहर किया। तो 0-4 की स्थिति, मुकाबला बहुत कठिन चल रहा है, कांटे की टक्कर चल रही है दोनों टीमों के बीच। बहुत तेज गति से गेंद निकल गई गोल लाइन के बाहर। 16 गज का हेडिंग मिलेगा यहाँ पर राउंड ग्लास के खिलाड़ी को। इस वक्त यहाँ पर राउंड ग्लास जो है, ये राउंड ग्लास ही इस मुकाबले को यहाँ पर आयोजित किया है, इसी के तत्वाधान में यहाँ पे मुकाबला चल रहा है। और मैं बता दूं, ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की टीम है, हॉकी खेल रही है, बहुत बेहतरीन हॉकी, 4 गोलों की बढ़त बना के रखा है इस वक्त राउंड ग्लास है। पंजाब हॉकी लीग, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इस हॉकी लीग में भारतवर्ष के अलग अलग कोने से एकेडमी की टीम चलकर आई है। SGPC श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी टीम है, जो कि है स्पोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ तमिलनाडु की टीम यहाँ पे खेल रही है। नोबेल टाटा जमशेदपुर की टीम आई हुई है। सुरजीत हॉकी एकेडमी जालंधर की टीम यहाँ पर खेल रही है। घुमान हेरा हॉकी एकेडमी दिल्ली की टीम है। राउंड ग्लास हॉकी एकेडमी ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की टीम है। शाई NCOE स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सोनीपत, ये हरियाणा की टीम यहाँ पे आई हुई है। और नामधारी हॉकी एकेडमी, जिसका ब्रांच पंजाब में भी है और हरियाणा में भी है। तो ये टीम, कुल 8 टीमें यहाँ पर अपने भाग्य आजमा रही है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये राउंड रॉबिन लीग का मुकाबला 9 सितंबर तक यहाँ पर चलेगा। इस मोहाली के स्वर्गीय बलबीर सिंह ओलंपियन अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में। इसके बाद ये मुकाबला शिफ्ट हो जाएगा जालंधर में। 15 सितंबर से ये मुकाबला जालंधर में शिफ्ट हो जाएगा और वहाँ पर सिंह हॉकी स्टेडियम में ये मुकाबला चलेगा। और इस मुकाबले का अंत होगा 26 सितंबर को 2 फाइनल खेले जाएंगे और 27 सितंबर को हार्ड लाइनर, तीसरा और चौथा पोजीशन और फाइनल मुकाबला होगा। यानी हॉकी का कारवां जो चला 30 अगस्त से, वो 27 सितंबर को जाके समाप्त होगा, अपने मंजिल को पहुंचेगा। तो चलिए एक बार चलते हैं। खेल बहुत ही बिना विघ्न का, बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की जितनी भी तारीफ की जाए, यहाँ पर राउंड ग्लास जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, बहुत अच्छा इंतजाम किया है। यहाँ पर पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के द्वारा खिलाड़ियों की रहने की व्यवस्था और जो यहाँ पर ऑफिशियल आए हुए हैं, अंपायर या टेक्निकल ऑफिशियल, बहुत अच्छा इंतजाम। और इस खूबसूरत स्टेडियम में एक बहुत ही रोमांचक हॉकी चलता हुआ इस वक्त। मुकाबले का दूसरा दिन है। दूसरा दिन का आज चौथा मुकाबला का दूसरा क्वार्टर आप देख रहे हैं। पहले मुकाबले में आपने अपनी मातृभाषा मदर लैंग्वेज में हैप्पी और वरिंदर जी के द्वारा आपको देखा, विवरण सुन रहे थे। कन्वर्सन उनके द्वारा वार्तालाप हो रहा था हॉकी के बारे में, खेल के बारे में। बीच बीच में हमारे हैप्पी जी बहुत अच्छा कविता भी सुना रहे थे, जिससे लोगों का, खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ता है और सुनने वालों का भी दिल बाग बाग हो जाता है। चलिए एक बार चलते हैं फिर खेल के मैदान में। लंबा हिट यहाँ पर डायगोनल पास बढ़ा दिया गया जपनीत सिंह के लिए। जपनीत सिंह राउंड क्लास के खिलाड़ी हैं। बॉल एक बार फिर यहाँ पर बॉल लेकर आगे बढ़ने की कोशिश, यहाँ पर बहुत तेज हिट, यहाँ पर गेंद गई बाहर। मैं बता दूं, जपनीत सिंह ये पंजाब के जाने माने खिलाड़ी हैं, जो पंजाब की टीम खेल रही थी अभी सीनियर मेन नेशनल हॉकी, उसमें उसके ये प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था। उस टीम से इन्होंने खेला था पंजाब की तरफ से। बहुत ही आक्रामक हॉकी खेलते हैं जपनीत सिंह। उस मुकाबले में इन्होंने गोल भी किया था, क्योंकि मैं कमेंट्री वहां पे कर रहा था। जो सुजीत सिंह हॉकी स्टेडियम में चल रहा था सीनियर। और यहाँ पर बॉल लेके निकलने की कोशिश, यहाँ एक और मौका, गई बाहर। तो स्थिति यहां पर है सूर्य के मुकाबले 4 गोल से आगे। बहुत ही
मुकाबला जबरदस्त चल रहा है। राउंड ग्लास की टीम ने इस वक्त यहाँ पर अग्रता हासिल करके रखा है शून्य के मुकाबले 4 गोलों की। बराबरी पर आने के लिए यहाँ पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के खिलाड़ियों को बहुत कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। इस वक्त यहाँ पर राउंड ग्लास के खिलाड़ी के पास बॉल ले जाके निकलने की कोशिश, मध्यरेखा से बॉल निकालने की कोशिश चल रहे थे, लेकिन वहां पर बेहतरीन इंटरसेप्ट और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के खिलाड़ी के द्वारा पीछे सरका दिया। चपास क्षेत्र में खेलती हुई यहाँ पर बॉल को हमारा हरमनप्रीत सिंह ने बनाया था और यहाँ पर गिरते राउंड ग्लास के खिलाड़ी। मध्यरेखा के पास फ्री हिट मिलता हुआ बॉल इस वक्त है सुखदेव सिंह के पास। सुखदेव सिंह श्रीमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एसजीपीसी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के खिलाड़ी इस वक्त बॉल सुखदेव सिंह बॉल लेकर आगे बढ़ते हुए बढ़ा दिया साथी खिलाड़ी के लिए। राइट फ्लैंक से अटैक करने के लिए चाह रही है वहां पर प्रबंधक कमेटी। अभी भी स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर खेल होता हुआ, लेकिन वहां पहुंचे हुए हैं राउंड ग्लास के खिलाड़ी। और यहाँ पर खेल के निर्णायक गुरप्रीत सिंह का इशारा लॉन्ग कॉर्नर हिटिंग के लिए प्रबंधक कमेटी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के खिलाड़ी ने यहाँ पे एरियल पास बढ़ाने की कोशिश की। गेंद स्टिक पे आई नहीं, गेंद निकल गई गोल लाइन के बाहर। स्थिति 0-4। पंजाब हॉकी लीग का आज दूसरा दिन का अंतिम मुकाबला यानी चौथा मुकाबला चल रहा है। राउंड ग्लास और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बीच बाजी मार रखी है राउंड ग्लास के खिलाड़ी। इस वक्त बॉल लेकर आगे बढ़ते हुए गुरुसेवक सिंह जो कप्तान है, गुरुसेवक सिंह बॉल लेकर आगे बढ़ने की कोशिश, स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर पहुंचने की कोशिश। यहाँ पर अच्छा इंटरसेप्ट खेल के निर्णायक करणदीप सिंह का इशारा फ्री हिट लेने का प्रबंधक कमेटी को मिल गया है। यहाँ फ्री हिट मध्यरेखा के पास बॉल लेकर आगे बढ़ते हुए यहाँ पर हरविंदर सिंह बॉल लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अभी भी हरविंदर सिंह के पास बॉल सीधा थ्रू पास बढ़ा दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए। बहुत अच्छा लपा है वहां पर जसमीत सिंह के लिए। जसमीत सिंह बॉल लेके नहीं ले पाए, बॉल को स्टिक पर आई नहीं गेंद बहुत तेज गति से निकल गई गोल लाइन के बाहर। 16 गज का हिटिंग इस वक्त यहाँ पर इशारा निर्णायक गुरप्रीत सिंह का इशारा यहाँ पर राउंड ग्लास के लिए। हॉकी बहुत तेज खेल होता है, तो मैं बता रहा था कि मुकाबले में ऐसा देखा जाता है कि अंतिम समय में हारने वाली टीम जीत जाती है, जीतने वाली टीम हार जाती है। हॉकी एक अद्भुत खेल है, क्योंकि जब विश्व कप हॉकी भारत में आयोजन हुआ था 2023 में, कुछ मुकाबले खेले गए थे भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में और कुछ मुकाबले खेले गए थे राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में। तो मैंने जो सेमीफाइनल में खेल देखा था, तो वहां पर अंतिम समय में सेमीफाइनल में एक महत्वपूर्ण अंतिम समय में हारने वाली टीम जीत गई थी। पासा पलट के रख दिया था हारने वाली टीम ने और जीतने वाली टीम हार गई थी। इसलिए हॉकी में जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। फिलहाल यहाँ पर पेनाल्टी कॉर्नर का इशारा खेल के निर्णायक। एक अच्छी खबर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लिए। रिप्ले में देखिए यहाँ पर, तो यहाँ बॉल को पीछे सरकाया था और यहाँ पर ऊंची उड़ती हुई गेंद और वहां पे गलत टैकल किया गया और खेल के निर्णायक यहाँ पर गुरप्रीत सिंह ने पेनाल्टी कॉर्नर का इशारा किया। ये है गुरप्रीत सिंह, बहुत ही कड़क अंपायर में जैसे बता रहा था। इन्होंने बिरसा मुंडा स्टेडियम सब जूनियर मुकाबला आज से 2-3 साल जो पहले हुआ था राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में, वहां पर एक ही खेल में 2 पेनाल्टी स्ट्रोक दे दिया था। हेड यहाँ पर ट्रैक के बाद बहुत तेज हिट, लेकिन यहाँ गेंद पैसे टकराई और ये मौका हाथ से निकला। एसजीपीसी का शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के खिलाड़ी इस वक्त आर्गुमेंट कर रहे हैं। हरविंदर सिंह इस वक्त आर्गुमेंट कर रहे हैं। गुरप्रीत सिंह उनको कुछ समझा रहे हैं, जबकि हरविंदर सिंह उनको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। रिप्ले देखिए यहाँ पर इंजेक्शन, ये ड्रैग और यहाँ पर 3 खिलाड़ियों के झुरमुट में से इशारा, लेकिन यहाँ पर रिप्ले में मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। ये देखिए रिप्ले बार बार ये देखा जा रहा है।
धीमी गति में देखा जा रहा है बार बार। ये हैं गुरप्रीत सिंह, ये चंडीगढ़ से आते हैं, पंजाब के चंडीगढ़ से आते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आज राउंड ग्लास के खिलाड़ियों ने अपने हौसले को परवाज दिया। यही कारण है कि आज यहाँ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को पीछे ढकेल दिया है, 4 गोल से पीछे छोड़ दिया है। हौसले को बुलंद रखना पड़ेगा, तभी कोई भी टीम जीत पाती है। मैदान के अंदर अपनी कौशलता को दिखाना पड़ेगा। खेल के हर क्षेत्र में, चाहे वो पास की बात हो या पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील करने की बात हो, स्कूप करने की बात हो, फ्लिक करने की बात हो, हर क्षेत्र में आगे आना पड़ेगा, तभी भी कोई टीम जीत पाती है। यहाँ पर ये रेफर किया गया है, वीडियो अंपायर को रेफर किया गया है मामला। इस द होल मैटर हैज बीन रेफर्ड टू द वीडियो अंपायर फॉर द फाइनल डिसीजन। और यहाँ पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के खिलाड़ी हरविंदर सिंह को बुलाया है गुरप्रीत सिंह अंपायर ने। काफी लंबी जिम्मेवारी होती है। आज आपने देखा था एक खिलाड़ी को पीला कार्ड भी दिखलाया गया था। यहाँ पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के खिलाड़ी को 5 मिनट के लिए बाहर भेजा था गुरप्रीत सिंह ने, क्योंकि वहां पर राउंड ग्लास के खिलाड़ी टोटिल हो गए थे, स्टिक से लग गई थी। प्रबंधक कमेटी के खिलाड़ी के स्टिक से लग गई थी राउंड ग्लास के खिलाड़ी को। और बिल्कुल यहाँ मैदान के अंदर अनुशासनहीनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। और इतनी अनुशासन का खेल है हॉकी, जैसे ही कार्ड दिखलाया जाता है खिलाड़ी बिना कोई देर किए हुए एक सांस में मैदान से बाहर चले जाते हैं। क्विक डिसीजन लिया जाता है, एकदम त्वरित डिसीजन लिया जाता है यहाँ पर अंपायर के द्वारा भी। और बिना डिसीजन आने के बाद बिना समय गंवाए हुए सीधा खिलाड़ी मैदान से बाहर जाते हैं। एक बार यहाँ फिर अटैक करती हुई राउंड ग्लास की टीम बॉल लेकर आगे बढ़ते हुए यहाँ पर गुरुसेवक सिंह बढ़ा दिया था साथी खिलाड़ी के लिए। एक बार फिर यहाँ पर अटैक कर रही है करणदीप सिंह। देखिए दूसरे अंपायर हैं करणदीप सिंह, स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, ये भी बहुत तेज तर्रार अंपायर हैं। फीट मिलता है अपनी क्षेत्र से यहाँ पर राउंड ग्लास के खिलाड़ी के पास बॉल। और यहाँ दूसरा क्वार्टर का समय बहुत ही नजदीक है। वक्त का पहिया बहुत तेजी के साथ घूम रहा है और जैसे जैसे समय बीतेगा यहाँ पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के खिलाड़ियों के ऊपर मानसिक दबाव बढ़ेगा। इसलिए प्रबंधक कमेटी के खिलाड़ियों को अपने खेल के नीति को बदलना पड़ेगा। अब यहाँ पर तेज हमला करना पड़ेगा, डी के अंदर पहुंचना पड़ेगा, स्टैकिंग सर्किल के अंदर पहुंच करके यहाँ पर राउंड ग्लास के स्टैकिंग सर्किल के अंदर पहुंच करके हमले को तेज करना पड़ेगा, हलचल मचानी पड़ेगी, तभी कुछ बात बन सकती है। क्योंकि जब तक आप दुश्मन के खेमे में हलचल नहीं मचाइएगा तब तक आपको स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर जब तक कोई गलती नहीं होगी तब तक आपको पेनल्टी कॉर्नर नहीं मिलेगा। गलती करने पर विपक्षी टीम को मजबूर करना पड़ेगा, तभी आप पेनल्टी कॉर्नर अर्जित कर पाते हैं। ऊंची उड़ती हुई गेंद, हवा में उड़ती हुई गेंद यहाँ पर फ्लैंग में बहुत तेज गति से निकल गई। कोई भी वहां पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का खिलाड़ी मौजूद नहीं था। बिल्कुल समय हूटर बजता हुआ यहाँ पर इस बात का संकेत कि दूसरा क्वार्टर का समय खत्म हो गया। स्थिति अभी भी बाजी मार करके रखी है। यहाँ पर राउंड ग्लास हॉकी अकादमी की टीम ने यहाँ 0 के मुकाबले 4 गोल से आगे है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इस वक्त पीछे चल रही है 4 गोल से। और दूसरा क्वार्टर का समय हो गया, मध्यांतर का समय हो गया है। हम चलेंगे तीसरे
क्वार्टर में आपको मैं लिए चलता हूँ और तीसरे क्वार्टर में आपको मैं लिए चलता हूँ अंग्रेजी में विवरण देने के लिए अपने साथी कमेंटेटर रामास्वामी के पास। नाउ ओवर टू रामास्वामी। Thank you, Shamim ji. And we are into the match number 8. Match number 8 between Round Glass Hockey Academy and SGPC Hockey Academy. So, phase 1, day 2, match number 8. Round Glass Academy dominating the game over SGPC Hockey Academy, leading by 4 goals to nil. So, what will be the plan? What will be the statistics? What will be the strategy for SGPC to come back into the game, and what will be the tactics of Round Glass to expand the lead? Will be going in the upcoming third and fourth quarter. So I am Ramaswamy, Bala Ramaswamy, for commentary in English, and with me is Shamim Alam for commentary in Hindi, and Sarabjit Singh and Birendra Sidhu ji for the commentary in Punjabi. So we'll just have a look at the team news of both the teams. First of all, in match number 8, it is Round Glass first. It is Gaurav Kumar, number 1 goalkeeper. Number 2, Sukhpreet Singh. Number 3, Gursevak Singh, captain of the team. Number 4, Japneet Singh. Number 6, Ashdeep Singh. Number 7, Prince Singh. Number 9, Anurag. Number 10, Jobanpreet Singh. Number 11, Sunny. Number 12, Om Rajneesh Saini. Number 13, Harmanjeet Singh. Number 17, Utkarsh. Number 18, Jeevan, goalkeeper. Number 19, Ramandeep Singh. Number 21, Jarman Singh. Number 22, Inderjeet Singh. 23, Sukhmanpreet Singh. Number 25, Amandeep Singh, who scored a goal, penalty corner goals, Amandeep. Number 25, number 26, Varinder Singh, and number 28 is Gurvinder Singh, and coach of the Round Glass Hockey Academy is Naveen. And team news for SGPC Hockey Academy Amritsar. Number 1, Karandeep Singh, goalkeeper. Number 2, Princepreet Singh. Number 4, Mehakdeep Singh. Number 5, Jagpreet Singh. Number 6, Pushbir Singh. Number 7, Jarmanpreet Singh. Number 8, Diljit Singh. Number 9, Prabjot Singh. Number 11, Sri Shubhijit Singh. Number 12, Sumanpreet Singh. Number 13, Harvinder Singh. Number 14, Sukhveer Singh. Number 15, Jasmeet Singh. And number 16, Kamaljeet Singh. Number 17, Jashanpreet Singh. Number 18, Gurikbal Singh, goalkeeper. Number 19, Ashdeep Singh. Number 20, Jagjit Singh. And number 21, Sukhdev Singh. And 22, Harmanpreet Singh, coach Avatar Singh, team manager Sarabjit Singh. So the umpires, Gurpreet Singh and Karandeep Singh. Judge for this game, Charat Singh and Vinamra Kantkar. Technical officer Indapal Singh, and reserve umpire is Ashwini Kumar. So it is, we can call it a Punjab derby between Round Glass and Punjab. The Punjab derby, who play both the teams from Punjab. Round Glass Academy from Chandigarh and SGPC Shiromani Gurudwara Prabhanjan Committee from Amritsar. So both the teams, it's a Punjab derby, but dominated by Round Glass Hockey Academy, calling all the shots, dominating over SGPC Hockey Academy team and leading it and leading the game and comfortable lead, and hope they will be
keeping on the momentum. They had the momentum, they have the lead. So how will they keep the momentum in the second half, that is the third and fourth quarter, is to be seen, or how SGPC Sports Hockey Academy will come back with specific plans to counter the momentum, the domination, to counter the domination of the Round Glass Hockey Academy team is to be seen. So far, in the driver's seat, it is Round Glass Hockey Academy. So, to remind you all, this Punjab Hockey League is an under-21 event, and it is hosted by the Round Glass Sports. Round Glass Academy is the host for this Punjab League. This is a very good initiative for the young youth talent of the Indian hockey to showcase their talent in this platform. Great platform for especially for the under 21 age group, since the junior national and the sub-junior nationals are the age group tournaments for the under 16 and under 19 age group boys. After under 19, straight away they have to transform themselves to the respective senior teams. So when it comes to the under 21 youth program, it is very good. In between 19 and the senior team, you have the youth. This is the best crop. This is the future of any sport. This age group is the future of any sport, and good initiative, very good initiative. All round applause and all round hats off to Round Glass for their efforts to bring this league for the youth of the nation, youth of the Indian hockey nation. So we are in the match number 8, and it is Round Glass Hockey Academy, the host, leading over Shiromani Gurudwara Pravachan Committee. So hope we got our act together. The feed is coming in. So today is the Hero Asia Cup is underway in Rajgir, Bihar. India winning back-to-back matches. India beat China. So the the third quarter underway in Mohali. SGPC with the possession and the recycle to the deep defense from the Round Glass half to their own half, trying to get space on to the right hand side. Number 11 for SGPC defended well. Amandeep, the goal scorer, reliable defender. Amandeep for Round Glass. It's a long corner for SGPC. Plays it towards the D, gets a circle entry. Ball deflects over the baseline of a defender's stick, and it is a long corner. SGPC restarted. Long corner taken. Ball pushed towards the D. There's a opportunity there. A shot on goal, saved by the Round Glass goalkeeper, but comes off high of his goalkeeping equipment, and it is a penalty corner for SGPC. So can SGPC make a comeback into the game, reduce the margin, get back into the game? Is all we are waiting for. Or will Round Glass defend this penalty corner? No, it's not. The routine is not
as they would have expected. For injection and the halt was not there, but a shot taken and number 25 Amandeep coming in line of the ball, taking the shot on his body. In the meantime, it is another penalty corner for SGPC, back-to-back penalty corners in succession for SGPC. So the injection, halting, and the drag and the flick has to be synchronized with halt. No, the attempt, they didn't know. They had no clue of what going to. They were actually planning to go for the direct one, but as the halt was not done with precision, halt was not good, and the ball slipped, and they tried to recover and make up with the indirect failed, and now it is GPC again with possession in their own half, trying to sting out some moves, attacking moves, pushed towards the center, deflected away by the round glass defender over the baseline. It is another long corner, 23-meter hit for SGPC. SGPC down by 4 goals. They have a mountain to climb to come back into the game. So time running out already. We are 4 minutes have been gone in this third quarter. So under 10 minutes, there's a circle entry, but cleared away. Mopped up by the round glass defender. Now round glass getting the turnover, trying to force the pace on the right hand side, but ball goes over the baseline. So sorry, sideline hit in for SGPC. So early momentum with SGPC in the third quarter, the early stages of the third quarter. Momentum with more possession, more attacks. Penalty corners in favor of SGPC. Pushing round glass defense on the back foot. Another long ball. Tried direct ball into the D, looking for a tip in, but ball goes without touching any either player stick, and ball. It is a 3 out for round glass. The host round glass. Now it is Amandeep on the right hand side. Placed to the right hand side. Another error trapping by the round glass player, and the ball is out for a hit in for SGPC. Played along the left hand side. Transferred to the right hand side. Wide open on the right hand side. Okay, but poor control. Hit in for round glass. Amandeep. Seen all over the pitch. Amandeep. Amandeep on restarts. Crash ball across the pitch. In possession now. Good build up on the right hand side. Looking for a circle entry, and it is goal number 5. What a team goal. It started all from the defense from Amandeep. As diagonal ball across the pitch, and a good passing. But here we see Amandeep. Diagonal ball across the pitch on to his player, and he controls onto the right hand side. Good movement there. Right hand side. Getting the circle entry and playing the ball to score player. Unselfish, and the player stations at the far post was just had to tap the ball inside. Final, and cruising round glass, cruising in this game, cruising and on the driver's seat, pressing the accelerator, as we said. So it is going to be all the way. It is going to be round glass. Round glass is the host of this Punjab Hockey League, and they have not disappointed it. Going ahead, final
under 7 minutes to go in the third quarter, and good team goal. The fifth goal was a wonderful team goal. It all started from the defense to the midfield to the forwards and finish. Started from left hand, started from the left hand side. The build up went to the right hand side, went to the far right, cut in, and at the finish it came to the left hand side, left post, and for a gentle tap in for that wrong glass player to make it 5 goals. That is what all team effort, teamwork is all. But on the point of view of SGPC, their defense was nowhere there, but all from the defense to the offense. So without any player, any SG player getting a touch onto the ball was scored into the goal. That is wonderful teamwork, wonderful. So the SGPC defense, the whole SGPC team was caught napping. They were just watching the ball, what is happening. No man marking, no zonal marking. Just they were watching the ball watching, and watch the Round Glass Academy score goals. What a goal. Now it is SGPC with a circle entry, but defended well, patiently good. The Punjab, the Round Glass team is not committing themselves. They're patient in their defense, not putting any stick in defense, any stick wrongly, not going on the wrong foot. Firm. Winning everywhere. The moves breaker now. SGPC gets a circle entry, backhander, tomahawk, saved by the goalkeeper. Gaurav on the break. It's turned over on the right hand side for Round Glass, the host. The free hit. Aerial ball across the pitch. Wonderful by Round Glass, but tackled away a little bit. The takedown was a little bit out of control. Now on the counter, turned over by SGPC, but ball goes out. It's a free hit for just outside the circle for SGPC. SGPC okay, Academy goes towards the D, but turnover, and it is for the Round Glass again on the right hand side. Wonderful movement, but he should have played to the right hand side, but instead he went to cut in, but losing possession. Now it is SGPC again forcing themselves, playing the ball straight to the opponent, and opponent turns over and takes control. Now it is on the left hand side. It's a build up towards the center. Round Glass, good bout of passing, clear passing, and having domination, having more possession, and not giving the SGPC Hockey Academy team any chance to make a break. So early stages of this quarter, SGPC had the momentum, were aggressive, earned penalty corners, unable to score, and after that slowly Round Glass, the host, took control of the game and scored another goal, making it 5-0, and that was a wonderful team goal by Round Glass. That's what all teamwork is about. From defense to offense, the ball not even touching the opponent's stick, it was scored. Clinical, the whole HGPC team was watching what was happening, all were ball watching. Now a chance there for SGPC, padded away by the goalkeeper. In the process, it's a free hit. Restarted very quickly by Round Glass, number 12. Cuts into the center. Wins a free hit, 2.5 minutes remain. Number 12 on to number 9 for Round Glass. On to the center, transfers to the right. A good possession hockey, good patient hockey, good build-ups, not forcing themselves. As I was stating, that was a basic error, trapping error. SGPC turns it over, looking for the counter, plays a long ball, but into no man's land over the baseline. 3 out for Round Glass, host of this Punjab Hockey League. Round Glass restarts with number 4.
with the aerial down the center, but straight to the SGPC player. SGPC now with possession. The aerial across the pitch looking for a player inside the D, but the 5-meter infringement. The hit now started quickly by Roundglass on to right hand side. Still circle entry, same pattern, but penalty corner. That right hand side movement from Roundglass is looking so dangerous. With that movement, they effortlessly gets the circle entry and makes problems and putting the SGPC team from Amritsar under lots and lots of pressure. Right hand side movement, very effective for Roundglass Hockey Academy, the host. So penalty count awarded. Is a referral taken? So no referral taken. It is going to be penalty corner. The injector getting ready, placing the ball on the spot of injection. 1 minute 25 seconds remain in this third quarter. Injector, altered, and what a conversion! Yeah, beautiful variation, beautiful indirect conversion. Ball dragged and pushed along the ground to the far post. Wonderful deflection. That's another team effort. Wonderful execution. Roundglass on top. Roundglass Academy, the hosts, are on top. Number 13 and pushes, and number 28 of Roundglass finishes it off with style. Number 28. Number 13 made the spade work. Harmanjeet Singh, and number 28 Gurvinder Singh makes no mistake, deflecting the ball burying the ball into the net, making it 6-0. So Roundglass were leading 4-0 at halftime, and now it is in the third quarter. They have scored 2 more goals. So on an average, we can see that Roundglass is scoring 2 goals per quarter on an average. Now again, trying to force the pace, but it is almost time for the third quarter. SGPC trying to force the pace to learn something inside the Roundglass Academy danger zone, but unable to get anything out of it. And it is quarter time, end of the third quarter, and Roundglass Hockey Academy Chandigarh effortlessly leading 6-0. Good teamwork, team goals. We've seen what we have seen in this quarter. A beautiful field goal. The move started from the defense to the offense. Started from the left-hand side, went to the right. The play went on to the right-hand side, from the right to the left, to the center and to the left, and simple tap-in. So, end of third quarter, it is Roundglass Hockey Academy 6 and SGPC Hockey Academy 0, and it's time to hand it over to hand over. Well, I don't know whether it is going to be so. It will be Shamim Alam. Welcome. Over to Shamim Alam. शुक्रिया रामास्वामी जी। एक पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है, शर्त यह है कि सलीके से संवारा जाए। कहीं जरूर कमी रह गई है यहाँ पर। आज कोच का श्रीमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है, यह इनकी कोच की जरूर कुछ कमी रह गई है, जिसके चलते ये प्रबंधक कमेटी की टीम बहुत पीछे चली गई है। और यूं कहा जाए कि हॉकी रूपी कश्ती बिल्कुल यहाँ पे भंवर में फंसती हुई नजर आ रही है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की टीम का कश्ती यहाँ पर फंसती हुई नजर आ रही है। तो चौथे क्वार्टर में हम चलेंगे। यहाँ पर अल्प विराम का समय है। कोच नवीन जो है राउंडग्लास के, इस वक्त देख सकते हैं खिलाड़ियों को दिशा निर्देश देते हुए। गुरु सेवक सिंह हैं, जपनित हैं, अर्षदीप, जवानप्रीत सिंह, ओम रजनीश सैनी, जीवन,
ये सब खिलाड़ी बहुत अच्छे से खिलाड़ी हैं। मैं बता दूं इसमें बहुत से खिलाड़ी हैं जो अभी जो हुआ जालंधर में, वहां पर पुरुषों का चैंपियनशिप जो हुआ उसमें खेल रहे थे ये पंजाब की तरफ से। यहाँ पर बॉल इस वक्त यहाँ पर खिलाड़ी के पास बॉल, इस जीपीसी की टीम ठीक हमारी कमेटी बॉक्स की अब बाईं तरफ चली आई है, जबकि कमेटी बॉक्स की दाईं तरफ नजर आ रही है यहाँ पर राउंड ग्लास की टीम लाल रंग की जर्सी में, जबकि काली रंग और हल्का मिश्रण अलग अलग रंगों का यह है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की टीम। 6 गोल से यहाँ पीछे चल रही है टीम। इस टीम को यहाँ पर आने के लिए, बराबरी पर आने के लिए बहुत लंबा सफर तय करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत पीछे चली गई है टीम। यहाँ पर 6 गोल के अंतर को पाटना कोई आसान नहीं है, लेकिन हॉकी में कुछ भी हो सकता है। जब तक कि हूटर बज नहीं पाता है, आखिरी हूटर की आवाज जब तक नहीं आती है, तब तक कहना कुछ मुश्किल, क्योंकि हमने हॉकी में देखा है पल पल में हॉकी का मिजाज बदलता है, रंग बदलता है। लेकिन उसके लिए मैंने जैसे कहा जाए, एक पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है, शर्त यह है कि सलीके से संवारा जाए। और यहाँ पर गेंद हाथ से टकराई, कैरेट हुआ, इशारा यहाँ पर खेल के निर्णायक का। तो चौथा क्वार्टर का खेल यहाँ पे चलता हुआ, बहुत ही तेज हॉकी चल रहा है यहाँ पर, लेकिन इस वक्त बहुत पीछे चली गई है। जहां तक सवाल है इस टीम का, श्रीमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का यहाँ तक सवाल है। और यहाँ पर करणदीप सिंह का इशारा, करणदीप सिंह का इशारा कुछ नजर आते हुआ। तो बहुत ही इस वक्त मुश्किल घड़ी में नजर आ रही है श्रीमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की टीम, क्योंकि अपने हमले को अभी और तेज कर दिया है। पेनल्टी कॉर्नर का इशारा यहाँ पर, गुरप्रीत सिंह का इशारा यहाँ पर राउंड ग्लास के लिए। रिप्ले में देखिए किस तरह से यहाँ पर गुरप्रीत सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर का इशारा किया, बाधा पहुंचाया गया राउंड ग्लास के टीम को, यहाँ पर उनके खिलाड़ी को। और यहाँ पर एक पेनल्टी कॉर्नर अर्जित करती हुई राउंड ग्लास की टीम, लाल रंग की जैसी में नजर आ रही है राउंड ग्लास की टीम। लाल रंग के अनुरूप यहाँ पर खतरे का सूचक बना इस वक्त हिट, यहाँ पर ड्रैग, यहाँ और इस ड्रैग गया बेकार। तो परिस्थिति से यहाँ पर बिल्कुल, ये देखिए रिप्ले में चलिए चलते हैं। यहाँ कुछ व्यवधान के कारण, कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण हम अब तक नहीं पहुंच पाए। खेत है है कि यहाँ पर लगातार कुछ व्यवधान आने के कारण हम आप तक नहीं पहुंच पाए हैं। चलिए एक बार फिर यहाँ पर खेल सामान्य होता हुआ। राउंड ग्लास ने क्या बेहतरीन आज यहाँ बढ़त प्राप्त करके रखा है, मजबूत बढ़त प्राप्त कर दिया है राउंड ग्लास में। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इस वक्त पीछे चल रही है यहाँ पर 6 गोल।
कबड्डी के खिलाड़ी के पास बॉल बढ़ा दिया है, बहुत अच्छा नपातुला पास बढ़ा दिया है हिंदुस्तानी खिलाड़ी के लिए। के लिए बॉल लेके आगे बढ़ने की कोशिश, यहाँ पर बॉल को जब जीसी के लिए बढ़ाएगा, यहाँ पर टर्निंग कॉर्नर में इशारा, कॉर्नर गेट किया गया, ये ट्रैक, लेकिन अच्छा बचाव यहाँ बहुत बेहतरीन बचाव यहाँ पर राउंड क्लास की खिलाड़ी के द्वारा। की तकनीक के ऊपर एक बार फिर यहाँ पर सीरीज लिखा हुआ किसी द्वारा कमेटी के खिलाड़ी के पास बॉल करते हुए जसजीत सिंह जो कप्तान है, अच्छा बचाव, बेहतरीन डिफेक्शन वहाँ पर। 16 का हिटिंग अब राउंड क्रॉस के द्वारा 6 मिनट 13 सेकंड का समय बचा है। बहुत तेज गति से इस वक्त हॉकी चलता हुआ, लेकिन इस परिस्थिति में यहाँ पर कहा जाए तो बिल्कुल स्थिति विपरीत चल रहा है। शिरोमणि राउंड क्लास के खिलाड़ी मध्य रेखा को क्रॉस करते हुए रन के बॉल ले निकले जाए कोशिश यहाँ पर, अच्छा पास ये टीम यहाँ सर्विस करता है, टॉम हॉक यहाँ पर, लेकिन गेंद बहुत दूर मार गए साधा यहाँ पर राउंड क्लास के खिलाड़ी ने, अन्यथा ये खतरा बनता यहाँ पर शिरोमणि द्वारा प्रबंधित कमेटी के ऊपर एक और खतरा पड़ा। बहिर यहाँ पर 0-6 की स्थिति पर पंजाब हॉकी लीग का आज दूसरे दिन का आखिरी मुकाबला चल रहा है। इस वक्त सुंदर सलोनी शाम ढलने को तैयार, ये ग्रीन कार्ड दोनों पर मिलेगा जी ने दोनों को। रणदीप सिंह जो अंपायर है ग्रीन कार्ड दिखलाया है। एक द्वारा प्रबंधक कमेटी और एक राउंड क्लास, राउंड क्लास की टीम है, ये आयोजन समिति की टीम है यहाँ पर। और एक बार ये देखिए कितना स्टाइलिश तरीके से इशारा किया है करने में। राउंड क्लास की टीम यहाँ पर प्रबंधक कमेटी की टीम है। और मैं बता दूं इशारा कवरेज आप देख रहे हैं यहाँ पर सौरभ जायलम प्रोडक्शन इंटरटेनमेंट टीम के द्वारा यहाँ पर इस मैदान के अंदर हर एक क्षेत्र से, हर एक एंगल से आप तक खेल के गतिविधि को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर राउंड क्लास स्पोर्ट्स यूट्यूब पर आप इसका आनंद ले रहे हैं। स्वागत है आपका राउंड क्लास यहाँ पर स्पोर्ट्स की यूट्यूब के ऊपर, जहाँ से आप अभी का सीधा प्रसारण देख रहे हैं। ये प्रसारण मोहाली से आपको दिखाया जा रहा है। सौरभ जायलम फिर यहाँ पर कमेटी की टीम बॉल को लेकर निकलने की कोशिश, 7 मीटर रेखा के पास पहुंचते हैं पीछे सरकारी अपने खिलाड़ी के लिए, और एक डिफेंडर के लिए बॉल को भेजा गया है यहाँ पर, लेकिन समय इस वक्त नहीं है डिफेंस का। एक बार फिर यहाँ पर खिलाड़ी के पास बॉल धीरे धीरे बॉल लेकर निकलने की कोशिश, बॉल का पास बढ़ा दिया हरमनजीत सिंह ने डायफ्राम में बढ़ाया है। वहाँ पर ग्लास बहुत कोशिश यहाँ पर खतरा बढ़ता हुआ प्रबंधक कमेटी के ऊपर साधने की कोशिश, और यहाँ पर बहुत बेहतरीन गेंद गई गोल पोस्ट के अंदर, 7वां गोल होता हुआ। बहुत बेहतरीन तरीके से बॉल लेके आगे बढ़े, अपने साथी खिलाड़ी को दिया, और वहाँ पर एक बेहतरीन डिफ्लेक्शन डिप्ले में देखिए किस तरह से गोल हुआ। बॉल को हवा में उछाला गया, वहाँ पर इंद्रजीत सिंह ने डिफ्लेक्ट किया 7वां गोल। इंद्रजीत सिंह के द्वारा 7वां गोल होता हुआ राउंड क्लास की टीम इस तरह से एक मजबूत बढ़त की ओर अग्रसर, और अब यूं कहा जाए जीत के देवी दरवाजे के ऊपर दस्तक देती हुई। लेकिन यहाँ करणदीप सिंह का बिल्कुल ही इरादा ठीक नहीं है, पीला कार्ड दिखलाया है इन्होंने, और राउंड क्लास के खिलाड़ी को 5 मिनट के लिए बाहर किया है मैदान में, सस्पेंशन फॉर 5 मिनट।
दंडित किया गया यहाँ पर राउंड गर्ल्स के खिलाड़ी को 28 खतरनाक नंबर खेल को के येलो लिए। कार्ड मिला जी रेड टीम के। इस तरह से 7-0 की स्थिति राउंड ग्लास की टीम ने यहाँ पर, आयोजन समिति की टीम है, यहाँ पर जाहिर कर दिया कैसा वो हॉकी खेलने के लिए चाह रही है। मैं बता दूं राउंड ग्लास की टीम ने अपने पहले मुकाबले में नामधारी को 0 के मुकाबले 2 गोल से पराजित किया और आज यहाँ पर 7-0 बढ़त लेने के बाद बिल्कुल जीतती हुई नजर आ रही है। मंजिल बहुत करीब नजर आ रहा है यहाँ पर राउंड ग्लास का। और अगर हम बात करें शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, तो हॉकी रूपी कश्ती इनका भंवर में बिल्कुल फंसती हुई नजर आ रही है। अब कोई चारा नहीं, वो ऐसा खेवनहार नहीं कि इस डूबती हुई कश्ती को साहिब तक ले जा पाए, क्योंकि वक्त निकल चुका है। 1 मिनट 3 सेकंड का मात्र समय बचा है और इस वक्त ऑफेंसिव खेल जारी है राउंड ग्लास का। यहाँ पर खेलते बॉल को पास सीधा करता हुआ यहाँ पर दोबारा प्रबंधक कमेटी के टैकलिंग करके एक बार सेवक ने बॉल बढ़ा दिया प्रसाद के खिलाड़ी के लिए। पीछे से आए वहाँ पर दोबारा प्रबंधक कमेटी के खिलाड़ी बॉल को निकालने की कोशिश, गलत पास बैठा दिया। वहाँ पर गेंद चली आई है जर्मन सिंह के पास। जर्मन सिंह ने बॉल को साथ खिलाड़ी के लिए बढ़ा दिया है। बेहतरीन पास से अटैक करने के लिए चाह रही है। 1 मिनट का समय है। इसको ऊंची उठी हुई गेंद, खतरा बनता हुआ एक बार फिर यहाँ पर प्रबंधक कमेटी के ऊपर सर्किल के अंदर खेल हो रहा है, लेकिन खेल के नायक गुरप्रीत सिंह का इशारा यहाँ पर फ्री हिट देने का प्रबंधक कमेटी को खींच यहाँ पर नेट में बॉल को बढ़ा दिया है। बहुत अच्छा पास यहाँ पर ने बॉल को बढ़ा दिया है, लंबा चौड़ा पास बढ़ा दिया है। जगदीश सिंह जो कप्तान है बॉल लेकर आगे बढ़ते हुए यहाँ पर डॉक्टर लाइन के पास पहुँच गए हैं। फ्री हिट मिलता हुआ रणदीप सिंह का इशारा फ्री हिट मिला है यहाँ पर सर्किल के ऊपर खेलती हुई यहाँ पर द्वारा प्रबंधक कमेटी की टीम। हमला धीरे धीरे तेज हो रहा है, लेकिन समय भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। वक्त की नजाकत को नहीं समझ पाई शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की टीम। अब वक्त की समय की कालांतर में इंटरवल टू टाइम गोल करती गई यहाँ पर राउंड ग्लास की टीम, और इसी का नतीजा है कि 0 के मुकाबले 7 गोलों की बढ़त। और यहाँ पर हुडर बजता हुआ चौथा क्वार्टर का समय खत्म हुआ। अभियान यहाँ आज का खत्म हुआ। राउंड ग्लास का जीत के साथ नाम किया इस मुकाबले को, आज के दूसरे दिन के चौथे मुकाबले को अपने नाम किया यहाँ पर राउंड ग्लास की टीम ने। और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की टीम पीछे रह गई, 7 गोल से पराजित हो गई ये टीम। और ये बताते हुए कि अब सुंदर सलोनी शाम बिल्कुल ढलने को तैयार है यहाँ पर स्वर्गीय सरदार बलबीर सिंह इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम मोहाली में। और यहाँ पर शाम ढल चुकी है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की टीम 4 गोल पराजय यहाँ पर हाथ लगी। मैं शमीम आलम अपने साथी कमेंटेटर हैप्पी और कैप्टन वरिंदर सिंह, साथ में 7 अंग्रेजी कमेंटेटर साथी साथ रामा स्वामी के साथ आपसे विदा ले रहा हूं। और मैं आपको लिए चलता हूं यहाँ पर आपको जो राउंड ग्लास यूट्यूब के यहाँ पर मीडिया की यूट्यूब चल रहा था, जहां से आप मुकाबले का सीधा प्रसारण देख रहे हैं, उस राउंड ग्लास यूट्यूब के ऊपर आपको सीधा वापस ले चलता हूं। नमस्कार, थैंक यू। मुंडा खेलता 28 नंबर सही नाम मिला।
between Roundglass Hockey Academy and SGPC Amritsar. The match won by Roundglass Hockey Academy. The player of the match for the fantastic performance and a hat-trick today, jersey number 25 from Roundglass Hockey Academy, Amandeep. I would like to request Mr. Abhishek Sinha, lead sports marketing, Punjab FC, accompanied by Krishna Upadhyay, lead sports marketing, Roundglass Sports, to felicitate the player. Today's player of the match powered by a flash, Mr. Amandeep from Roundglass. Here we conclude the day 2 from Punjab Hockey League 2025. Tomorrow is a rest day for all the teams. The competition will resume from the next tomorrow. आज